Praise the Lord. Praise the Lord. I want to greet you in the name of Jesus. मैं आपको यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ I believe you are enjoying the study in the Gospel of Mark. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप मरकुस का शुभ समाचार पढ़ते हुए बहुत खुश हैं। We are now in chapter 3. और अभी हम तीसरा अध्याय में हैं। We so far saw how John the Baptist did ministry, and then we saw Jesus doing ministry. हमने अब तक ये देखा कि कैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने सेवकाई की, उसके बाद यीशु मसीह ने सेवकाई की, And how the Pharisees went against Jesus and his ministry. और कैसे फरीसी लोग यीशु मसीह के खिलाफ गए, उनकी सेवकाई के खिलाफ गए। How much they really want to follow rules and regulations. वो कितना नियम के पीछे चलना चाहते हैं, And how Jesus taught them in a loving way. और कैसे यीशु मसीह ने उन्हें प्रेम के द्वारा सिखाया। So in chapter 3, in the first 6 verses, we saw how the Pharisees and the Herodians came to kill Jesus. They're planning now to kill Jesus. और हम ये देखते हैं कि तीसरे अध्याय में पहले से 6 वचन में कि कैसे फरीसी और हेरोदियों लोग जो है वो कैसे यीशु मसीह को मार डालना चाहते हैं। Verse 7. वचन 7। But Jesus withdrew with his disciples to the sea, and a great multitude from Galilee followed him, and from Judea and Jerusalem, Idumea, and beyond the Jordan, and those from Tyre and Sidon, a great multitude, when they heard how many things he was doing, came to him. यीशु अपने चेले के साथ झील की ओर चला गया और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और यहूदिया और यरूशलेम और इमूदिया और यरदन के पार और सूर और सैदा के आसपास में एक बड़ी भीड़ यह सुनकर कि वह कैसे अचंभे के काम करता है उसके पास आई। You see, it's heartbreaking to see people who have a hardened heart want to reject Jesus, and they go to extent of even planning to kill him. ये दुख की बात है कि कैसे जिनका दिल कठोर है वो यीशु मसीह के पास नहीं जा पा रहे हैं और ना ही उनकी बातों को वो सुन पा रहे हैं। If you read Numbers chapter 12, you will understand what is happening here is similar to what is happening there. अगर आप गिनती का 12वां अध्याय में देखेंगे, वहां पे जो कुछ भी हुआ है वही यहाँ पे भी हो रहा है। They reject the leader that God sends. और जो परमेश्वर ने जो अगुवाई उनके लिए भेजा था उन्होंने उनको नकारा। They rejected Jesus. उन्होंने यीशु मसीह को नकारा। In the Old Testament, they rejected Moses. और पुराने नियम में वो लोगों ने मूसा को नकारा। Today, people say, "I want a ministry like Moses." आजकल लोग ये कहते हैं कि मुझे मूसा जैसा सेवकाई चाहिए। But the truth is, Moses was a humble man. लेकिन सच्चाई की बात ये थी कि मूसा जो है वो नम्रता वाला व्यक्ति था। People rejected him. लेकिन लोगों ने उसे नकारा। I want you to understand, they reject Jesus as well. और मैं चाहता हूँ कि आप ये समझे कि वो लोगों ने यीशु मसीह को भी नकारा। Think about this, how much it would have hurt Jesus. अभी आप मेरे साथ ये सोचे कि कितना उन लोगों ने यीशु मसीह को दुख पहुंचाया होगा। Now God is present. God who created the entire universe is there with his people, and he's spending time with them, and they don't want him around. और अभी परमेश्वर यहाँ पे है जिसने सृष्टि का निर्माण किया है, वो अपने लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन ये लोग ये नहीं चाहते थे कि यीशु मसीह उनके साथ रहे। God in their midst, meaning Emmanuel. परमेश्वर उनके बीच में है, मतलब इमैनुअल। See, Jesus is now delivering his people. अभी आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह अपने लोगों को छुटकारा दे रहे हैं। It's like people are coming from everywhere, like, around the sea. If all these people are standing, it reminds me of the Red Sea incident in Egypt, how so many people were standing in front of the sea. जैसे कि यीशु मसीह झील के किनारे बैठे हैं और सब लोग भीड़ इकट्ठा हुआ है, ये मुझे याद दिलाता है वो लाल समंदर का, जब लोग यही मुझे याद दिलाता है लाल समंदर का, जब इतने सारे भीड़ इकट्ठा हुए थे और वहां पे खड़े थे। Jesus was not seeking for a crowd. आप जानते हैं यीशु मसीह भीड़ के पीछे नहीं थी। He was not a crowd seeker. भीड़ के पीछे चलने वाला व्यक्ति नहीं था। Crowd came after him. लेकिन जो भीड़ है वो उनके पीछे आई। In fact, the whole coastal area, the coastal region, has heard what has been done. अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जितने भी झील के किनारे में जितने भी लोग रहते थे वो जानते थे कि यीशु मसीह ने क्या क्या किया है। People came to Galilee from Judea, which was 109 kilometers away.
और जो लोग थे वो यहूदिया से आए गलील में, जो 109 किलोमीटर दूर था। And then we see they also came all the way far away from Jordan River, which was around 38 kilometers. और अगर आप देखेंगे कि कुछ लोग जो है वो यर्दन के पार आए गलील में, जो 48 किलोमीटर दूर था। And then they also came from around Tyre and Sidon, which is almost 83 kilometers. और कुछ लोग सूर और सैदा से भी आए, जो 80 किलोमीटर दूर था। They also came from around Tyre and Sidon, which was around 80 plus kilometers. और वो लोग सूर और सैदा से भी आए, जो लगभग 80 किलोमीटर था। So much of crowd. इतना सारा भीड़, People from everywhere come around Jesus. सब लोग बहुत दूर से यीशु मसीह से मिलने आए। A great multitude, says the Bible. और ऐसा कहा गया है कि वो बहुत सारे लोग भीड़ इकट्ठा हुए, Because they heard many things that he was doing. क्योंकि उन लोगों ने सुना बहुत सारा काम जो यीशु मसीह ने किया था। See, crowd comes when they get to hear a lot of things happening. और भीड़ तभी आता है जब उनको सुनने में आता है कि कुछ हो रहा है। And you know that the Pharisees wanted to kill Jesus. और आप जानते हैं कि फरीसी लोग यीशु मसीह को मार डालना चाहते थे। This was an unwanted crowd. ये जो भीड़ था इसकी कोई जरूरत नहीं थी। Big noise, big crowd, big attention. बहुत बड़ा शोर, बहुत बड़ा भीड़ और ज्यादा ध्यान। The Pharisees wanted to kill Jesus. क्योंकि फरीसी लोग यीशु मसीह को मार डालना चाहते थे। You know, we see these people more and more coming to Jesus for what he has done. हम देखते हैं कि ये लोग जो है यीशु मसीह को मिलना चाहते थे, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि इन्होंने क्या क्या किया है। You know, Jesus wanted to preach them the kingdom of God. यीशु मसीह उन्हें प्रचार करना चाहते थे परमेश्वर के राज्य के बारे में। So verse 9. तो वचन 9, If you see, so he told his disciples that a small boat should be kept ready for him because of the multitude, let not they should crush him. उसने अपने चेले से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे ताकि वे मुझे दबा ना सके। See, many people came there for healing. देखो, बहुत से लोग वहां पे चंगाई के लिए आए थे। Jesus was in his human body. यीशु मसीह अपने मानवता के शरीर में थे। So if people are going to press him, they're going to crush him. और जब लोग उन्हें छुएंगे, उन्हें जकड़ेंगे, तो वो दब जाएंगे। So Jesus didn't only stand there as the Son of God, he also stood there as a human being. यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे ही, लेकिन वो एक मनुष्य भी थे। So he told the disciples to arrange a boat so that he can be safe. इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि वो उनके लिए एक नाव तैयार करे ताकि वो वहां पे सुरक्षित रहे। Jesus was not scared of death, यीशु मसीह को मृत्यु का डर नहीं था, but that was not his time. लेकिन उनका समय नहीं आया था। Jesus didn't want his death to be like this. परमेश्वर यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि उनका मृत्यु इस तरीके से हो। He knows how his death is going to be. क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनका मृत्यु कैसे होने वाला है। Verse 10. वचन 10, For he healed many, so that as many as had afflictions pressed about him to touch him. क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था, इसलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे उसे छूने के लिए उस पर गिर पड़े थे। Now, if you pay attention, Jesus didn't say, all right, so much crowd has come, it's okay, I can face it. यीशु मसीह ने यहाँ पे ऐसा नहीं कहा कि अरे इतना सारा भीड़ आया है, चलो हम इनसे मिलते हैं। Jesus didn't say, this crowd might even kill me, that's okay. और यीशु मसीह ने ऐसा भी नहीं कहा कि ये भीड़ के कारण शायद मैं मर जाऊंगा तो चलेगा। No. नहीं, Jesus went to a place of protection. यीशु मसीह एक सुरक्षित जगह पे गए। We also need to understand when if you have any attack happening towards you, it's okay to choose a safe place. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके विरुद्ध कुछ हो रहा है या तो फिर आप खतरे में हैं, तो आप एक सुरक्षित जगह में जा सकते हैं। Don't say God will protect me, I can just face a bullet. आप ऐसा ना बोले कि हाँ परमेश्वर मेरी रक्षा करेंगे, तो चाहे कोई बुलेट भी मेरे ऊपर आए तो मुझे कुछ नहीं होगा। No. नहीं, Be careful. इसलिए आप ध्यान दें, Don't show off. आप दिखावटी ना करें।
And again, Jesus was standing there and healing people. और वहां पे यीशु मसीह खड़े थे और लोगों को चंगाई दे रहे थे। And then people pressed towards him more and more. और जो लोग थे वो उनको और ज्यादा दबाव दे रहे थे। See, you can't force Jesus and demand Jesus to heal you. आप यीशु मसीह के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते और उनको बोल नहीं सकते कि हाँ तू मुझे चंगाई दे। You know, oftentimes we try to just force Jesus. बहुत बार ऐसा होता है कि हम यीशु मसीह के ऊपर जबरदस्ती करते हैं। Sometimes we take the name of Jesus and we actually command Jesus. कभी कभी हम यीशु मसीह का नाम लेके हम यीशु मसीह को ही आज्ञा दे देते हैं। The way we say the name itself shows like we are commanding Jesus. जिस तरीके से हम उनका नाम लेते हैं ऐसा लगता है कि हम उनको बोल रहे हैं हमारे आज्ञाओं का पालन करने। So please don't force God to heal you. तो इसलिए आप परमेश्वर को जबरदस्ती ना करें कि ये बोल के कि मुझे चंगाई दे। Jesus is looking for a change of heart. यीशु मसीह चाहते हैं कि आपका दिल बदले। Change your heart. आपके दिल को आप बदले। Hardened heart will stop God from working in your life. कठोर दिल के कारण आप परमेश्वर के साथ काम नहीं कर सकते। So if you see, Jesus told his disciples to keep a boat. अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे यीशु मसीह ने अपने शिष्य को कहा कि एक नाव तैयार कर। Jesus didn't want the crowd to press toward him. क्योंकि यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि वो भीड़ आकर उन्हें दबा दे। Even then the crowd came and pressed towards him. लेकिन फिर भी भीड़ आकर भीड़ ने उन्हें दबाया। A lot of times we as Christian leaders, sometimes we get attracted towards crowd. और कभी कभी हम भी क्रिस्ती होने के नाते कभी कभी भीड़ से हम भी आकर्षित हो जाते हैं। We want crowd. क्योंकि हमें भीड़ चाहिए। We think God is working only when there is a crowd. हमको ऐसा लगता है कि परमेश्वर वहीं पे कार्य करते हैं जहाँ पे भीड़ होती है। No. नहीं। If there is crowd, that means God is really working there something big. That's what people think. और लोग ये भी सोचते हैं कि अगर वहाँ पे भीड़ है तो मतलब परमेश्वर कुछ बड़ा कार्य वहाँ पे कर रहे हैं। No. नहीं। The crowd wanted healing. लेकिन वो जो भीड़ है उनको चंगाई चाहिए था। They basically wanted what Jesus is doing everywhere in their life also. और वो चाहते थे कि जो भी यीशु मसीह आसपास में जो कुछ कर रहे हैं वो उनके जीवन में भी हो जाए। But if you see, this is not how Jesus wanted to work. लेकिन अगर आप देखेंगे ऐसे यीशु मसीह को काम नहीं करना था। Jesus said, set up a boat so I can be away from this crowd. और यीशु मसीह ने कहा कि एक नाव तैयार कर ताकि मैं भीड़ से दूर हो जाऊं। A small boat. एक छोटा सा नाव। If you had so much of crowd following you, wouldn't you think you would have asked for a very, very big cruise ship? अगर आप भीड़ में होते तो क्या आपको नहीं लगता आपने तो ये सोच लिया होता कि शायद मेरे लिए एक नया नाव तैयार करे ताकि उस नए नाव में मैं जा सकूं? Like, you know, a lot of people would like big, big ships today. जैसे आजकल बहुत से लोगों को एक बड़ा बड़ा नाव या शिप चाहिए होता है। Because the crowd is coming behind them. क्योंकि भीड़ उनके पीछे आ रही है। Be careful. इसलिए आप ध्यान दें। Let our hearts be in the right place. हमारा जो दिल है वो सही जगह पे होना चाहिए। So, healing according to you is not God's plan. तो जो चंगाई आपके अनुसार जो भी है वो परमेश्वर का योजना नहीं है। God's will is to heal you according to His plan. और परमेश्वर का यही इच्छा है कि वो आपको चंगाई देना चाहते हैं उनके योजना के अनुसार। We can't twist His arms to do things for us. और हम उनके हाथ को मरोड़ नहीं सकते ये बोलकर कि तू मेरे लिए कर। lot of people think if I pray for 40 days for the same thing, it will happen. बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि अगर 40 दिन मैंने उपवास करके प्रार्थना किया तो वो जरूर पूरा होगा। For the same thing. वही चीज के लिए। That's not how it works. ऐसे काम नहीं होता। God wants fervent prayer, faithful prayer, honest prayer. परमेश्वर को आपसे सच्चाई वाला प्रार्थना चाहिए, जो वफादारी वाला प्रार्थना चाहिए। So Jesus was a crowd puller, but was not a crowd seeker. तो यीशु मसीह जो थे उनको देखकर लोग आते थे, लेकिन यीशु मसीह कभी भी भीड़ को देखकर नहीं जाते थे। And then you see verse 11. और फिर आप 11वां वचन देखें। And whenever the unclean spirits saw him, they fell down before him and cried out, "You are the Son of God." अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। And Jesus, what did he say? और यीशु मसीह ने क्या कहा? He didn't say, "Wow, good. You know, you did the right thing." No.
उन्होंने ऐसा नहीं कहा, अरे वाह अच्छी बात है, तूने सही किया है। Wow, you got it. You just told everybody, wonderful, you are so faithful. No. उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा, अरे वाह तुमको मालूम पड़ा कि मैं परमेश्वर हूँ और तुमने सब लोगों को बताया, बहुत अच्छा किया। ऐसा भी उन्होंने नहीं कहा। You see, they were not worshipping him. आप देख सकते हैं कि वो जो दुष्ट आत्माएं हैं वो यीशु मसीह का आराधना नहीं कर रहे थे, They're just crying out. वो बस रो रहे थे। They cried out the truth. वो लोग एक्चुअली रो रहे थे सच्चाई के लिए कि वो सच्चा परमेश्वर है। They just screamed because they want to cause attention so that Jesus can be caught. और वो लोगों ने इसलिए चिल्लाया ताकि उनको भीड़ का जो है ध्यान मिल सके और यीशु मसीह को पकड़वाया जा सके। They were not worshipping Jesus. वो यीशु मसीह का आराधना नहीं कर रहे थे। These unclean spirits saw him and immediately they fell before him and cried out. और ये अशुद्ध आत्माएं ने यीशु मसीह को देखा और वो नीचे गिर पड़े और रोने लगे। And verse 12. और उसके बाद 12वां वचन, He sternly ordered them not to make him known. और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रकट ना करना। But he sternly warned them that they should not make him known. और उसने उन्हें बहुत चिताया कि उसे प्रकट ना करना। Sometimes fame as a Christian is a big problem. कभी कभी एक ख्रिस्ती होने के नाते प्रसिद्ध होना बहुत बड़ा परेशानी है, Because people think being famous is successful. क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि प्रसिद्ध होना मतलब सफलता प्राप्त करना है। In the world, maybe, हो सकता है दुनिया में, but not in the kingdom of God. लेकिन परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं है। You see, in the kingdom of God, the more you are humble, the more you are faithful, the more you are serving, you are blessed and known by God. और परमेश्वर के राज्य में अगर आप नम्रता में रहते हो, अगर आप सेवकाई में हो, आप सेवा करते हो, तो वो ही परमेश्वर देखते हैं। That is true blessing. और वो ही सच्चा आशीर्वाद है। That is true success. और वो ही सच्चा सफलता है। It's not how much and how many people follow us. ये ऐसा नहीं है कि कितने लोग मेरे पीछे चल रहे हैं। Today, young people are all about social media fan following. और आजकल जितने भी जवान लोग हैं बस वो सोशल मीडिया के पीछे है और कितने फैंस उनके पीछे चल रहे हैं वो देखते हैं। People want to make money just to become famous, and people become famous so that they can make money. और जो लोग हैं वो पैसा डाल रहे हैं ताकि वो प्रसिद्ध हो सके और उसी से वो पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। Isn't it funny how this world works? कि ये दुनिया कैसे चल रही है, कितनी मजाकिया बात है। Jesus didn't want that. यीशु मसीह को ये नहीं चाहिए था। Jesus didn't want a crowd and fan following and famous. और यीशु मसीह को वो भीड़, वो फैंस उनका होना या तो फिर उनको प्रसिद्ध होना नहीं चाहिए था। Jesus didn't want a great fan following. यीशु मसीह को कोई फैन फॉलोइंग नहीं चाहिए था। Jesus wanted to just show his love towards people. यीशु मसीह बस अपना प्रेम लोगों में दिखा रहे थे। He didn't want posters put everywhere saying Jesus has come, now everybody come on, let's go. No. और उन्होंने ये भी नहीं किया कि सब जगह पे पोस्टर लगाया कि देखो यीशु मसीह आ रहे हैं, चलो जाते हैं उनके पीछे। People did that. लोगों ने ऐसा किया, Jesus didn't do that. यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। So we have to be careful as Christians when we are trying to promote ourselves. तो इसलिए क्रिस्ती होने के नाते हमें बहुत ध्यान देना है कि हमें अपने नाम के पीछे नहीं जाना है। Sometimes people want to build a reputation and they are trying to do anything to give that good name. और कभी कभी कुछ लोग ऐसे हैं कि अपना नाम कमाने के लिए, अच्छा नाम पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। Jesus didn't do that. लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। Jesus was not a people pleaser. और यीशु मसीह ने कभी भी लोगों को प्रसन्न नहीं किया। He only focused on fulfilling the work of God the Father. और उनका सिर्फ ध्यान परमेश्वर पिता के ऊपर था, उनके काम के ऊपर था। He was not attention seeking. उन्हें किसी ध्यान की जरूरत नहीं थी। He only focused on God's will. He put his attention on God's work. उन्होंने सिर्फ परमेश्वर का इच्छा पूरा किया और परमेश्वर का काम को उन्होंने पूरा किया। He didn't focus on being known outside. और उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि कितने लोग उन्हें जानते हैं। He didn't do all these things to be known. और उन्होंने अपना नाम कमाने के लिए नहीं किया। Please understand, Jesus
didn't do many things that today we do in the name of Jesus. और आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि यीशु मसीह ने अपने नाम में बहुत सारा चीज नहीं किया जो आजकल हम उनके नाम में बहुत सारा चीज करते हैं। Why are you here? Why are you calling upon Jesus' name? आप यहाँ पे क्यों है और आप यीशु मसीह का नाम क्यों ले रहे हैं? What is in your heart? आपके दिल में क्या है? Where is your heart? आपका दिल कहाँ है? What do you want? आपको क्या चाहिए? Are you going behind Jesus, coming for Jesus just because you can get something? क्या आप यीशु मसीह के पीछे इसलिए आ रहे हो ताकि आपको कुछ उनसे मिल सकता है? Are you doing ministry because you're getting famous? क्या आप सेवकाई इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप प्रसिद्ध हो रहे हो? Are you doing a particular ministry just because you want to be known and your name should be established? क्या आप सेवकाई इसलिए कर रहे हो ताकि आपका नाम सब लोग जान सके और आपका सेवकाई का स्थापना हो सके? Are you crowd seeking? क्या आप भीड़ के पीछे चलने वाले लोग हो? Are you wanting crowd to come after you? क्या आप चाहते हैं कि भीड़ आपके पीछे आए? If there is nobody, no crowd, are you still happy serving Jesus? अगर कोई भीड़ नहीं है और कोई भी नहीं है तो भी क्या आप यीशु मसीह का सेवकाई करने के लिए तैयार हैं? Are you there or here today to worship Jesus? क्या आप यहाँ पे आज इसलिए है क्योंकि आप परमेश्वर यीशु का आराधना करना चाहते हैं? Are you here to know Jesus and have a relationship with him, or you are here to just get something from Jesus? आप यहाँ पे किस लिए हो? एक यीशु मसीह के साथ रिश्ता बनाने के लिए या आप उससे कुछ पाना चाहते हो? They didn't want him. उन लोगों को यीशु मसीह नहीं चाहिए था। They didn't want God's plan. उन लोगों को परमेश्वर का योजना नहीं चाहिए था। They didn't want his will or his message. उन लोगों को उनका इच्छा या उनका प्रचार क्या है ये नहीं चाहिए था। They wanted to do their own thing. उनको सिर्फ अपना ही काम करना था। They were willing to push Jesus. इसलिए वो लोग यीशु मसीह को दबाना चाहते थे। Like if you are in a crowd, sometimes imagine if you are in a railway station, somebody is giving free caps. A lot of people go around and push that person and tear and pull and push that cap, you know. आप मेरे साथ सोचिए कि आप रेलवे स्टेशन में जा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारा भीड़ है और कोई फ्री में आपको टोपी दे रहे हैं, तो वो टोपी लेने के लिए आप भीड़ के अंदर घुस के किसी ना किसी तरह सबको चीर फाड़ के आप वो टोपी लेने की कोशिश करते हैं। That's exactly how people came around Jesus. और वही यहाँ पे हो रहा है जब वो यीशु मसीह को मिलने आए। How can I get it? How can I get it? मुझे कैसे कुछ मिल सकता है यीशु मसीह से? No. नहीं। Have the right heart. आपका दिल को आप सही करें। Follow Jesus sincerely. यीशु मसीह के पीछे सच्चाई में चलें। Don't come for the freebies that Jesus gives. Come to Jesus with a heart of repentance so that you can have eternal life. और आप सिर्फ मुफ्त में कुछ यीशु मसीह से पाने के लिए आप न आए, लेकिन आप आपका दिल को लेकर आए, आप पश्चाताप करें, मन फिराए और यीशु मसीह के हाथ में उन्हें सौंपें। You will receive eternal life. और फिर आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Father, we just thank you and want to say we love you and thank you for your grace and mercy. हे परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। Change our hearts, Lord. हमारे दिल को तू बदल परमेश्वर। Change our hearts. हमारे दिल को तू बदल। Help us to focus on you and your work. हमारी मदद करके हम तुझ पर ध्यान दे और तेरे कामों के ऊपर ध्यान दे। Even if it is a small group of people, help us to be faithful to them and be happy with them. अगर मुझे तूने छोटे से लोग दिए हैं जो ज्यादा बड़े नहीं हैं परमेश्वर, मैं उनमें भी काम कर सकूं और उनमें खुश रह सकूं। Let us not run behind famous people. मुझे प्रसिद्ध लोगों के पीछे नहीं जाना है। Let's not run for crowd. हमें भीड़ के पीछे नहीं जाना है। Help us to feed your people with the word. हमारी मदद करके हम तेरे वचन के द्वारा लोगों को खिला सके। In Jesus' name we pray. ये हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank you for joining us. धन्यवाद आपने हमें ज्वाइन किया। प्रेज द लॉर्ड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं और आपको हमारा मैसेज पसंद आया है। जैसे कि आप सब जानते हैं, जो कोविड की स्थिति पूरी दुनिया भर में चल रही है, जिस कारण हम कलेशिया नहीं जा पा रहे हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कलेशिया नहीं जा पा रहे हैं और आप किसी ऑनलाइन सर्विस के खोज में हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम हर रविवार को 11:30 बजे सिंपली बाइबल यूट्यूब चैनल में मिलते हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल में जाएंगे और वहाँ पे सिंपली बाइबल करके सर्च करेंगे
तो आपको हमारा सारा वीडियोस मिल जाएगा। और जो रविवार को 11:30 बजे जो लाइव सर्विस होता है वो भी आप देख पाएंगे। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको मैसेज पसंद आता है तो आप शेयर करें। और वहाँ पे यूट्यूब चैनल पे अगर आपको कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट को देखकर आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। और मैं यही कहूँगी कि आप अपने आप का ख्याल रखें इस कोविड की स्थिति में। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।